Albert Einstein once said, strive not to be a success, but rather to be of value. In BBA program, you will get the opportunity not only to gain knowledge, but also to strive and cultivate those skills which will add value to all your future endeavors. I, Dr. Smriti Vakil, invite you all on Samvad 2024. Aspiring students, respected sir, and my dear faculties, I invite you all on behalf of FOBA GLS University for Samvad 2024. Under the experiential learning model, we invite and keep the students ready for corporates. Today marks the beginning of your journey, and we need all of you to be ready for the corporate, for the dynamic world of business. So, without a further ado, now I would like to introduce Biswarup Padhi sir. Biswarup Padhi sir comes with a diverse experience across the industries as a growth specialist. He is an amazing TEDx speaker having more than 20 years of experience into fintech and digital marketing. His specialties are national and international sales and distribution, promotion, branding, advertisement, career counseling, and mentoring. He is right now the director and founder of Adept Academy. Now, I would like to invite Dr. Sonal Gogri ma'am to welcome Biswarup sir with the memento. The future belongs to those who can think creatively and critically, who can collaborate across various disciplines, and who can apply knowledge to solve complex problems. To embrace this sentiment, I would like to invite Padhi sir to talk on careers of the future need combinational skills. Without a further ado, I would like to invite Padhi sir on the stage. Meanwhile, I want everyone to keep their phones on silent, please. Thank you. Am I audible? Backbenchers, give me a cheer. खाना वाना नहीं खा के आए हो क्या? Okay, good morning everybody. As you begin this amazing phase of your careers, let me first congratulate you. चाहे कोई कुछ भी बोले, the golden days of your life are here. So give yourself, everybody, a very big cheer and a big round of applause. If somebody tells me कि you could go back to college, 2 करोड़ रुपए लगेंगे, 200 करोड़ रुपए लगेंगे, मैं आंख बंद करके 2000 करोड़ रुपए दे दूंगा उसको. Because genuinely, given the opportunity to be a youngster again, and that too in such amazing times, would be mind-blowing for my professional growth and personal growth. However, as I am invited to universities across the country, talk to fresh batches of kids every year, I see this very clear trend establishing in terms of how our generation built our career versus how you guys are going to be building your career. अभी डॉक्टर स्मृति मैम ने कहा 20 साल हो गए मेरे को काम करते करते, ये तो हेयर स्टाइल देख के समझ में आ ही रहा है, right? So 20 years down the line, this young stud here might as well look like me, right? बोल रहा है कि नहीं यार बाल तो मेरे तब भी होंगे, okay? But today sitting here early morning, कुछ लोगों को नींद विंद भी आ रहा होगा, कल मैच भी डिले हो गया ना, इंडिया जीतते जीतते 1:30 बजा दिया. But nevertheless, for the next 1.5 hours, I'm not going to be unnecessarily using flowery words. I'm not going to be just giving you motivational doses. I will, what if at all, give you something which is known as a reality check. ये beautiful campus, पड़ोस में ही है आप लोगों का, great colleagues, great teachers. Is this the real world? Is this the real world? No, this is a beautiful cocoon of learning, experiences, making friends, making mistakes, and finally, एक दो चीजों की guarantee है. So today, sitting here in 2024, if all of us were to predict कि 3 साल बाद एक चीज की तो guarantee है, 2027, same time, आप सब के हाथ में एक चमचमाता हुआ piece of paper आएगा. What will that piece of paper be called? Your graduation degree, right? इसको कोई रोक सकता है? क्या इस चीज को कोई रोक सकता है? तो बधाई हो, all of you future graduates. The issue is, the moment we are born in India, हम लोग hundreds या thousands में बात ही नहीं करते हैं.
हम किस में बात करते हैं नॉर्मली? हम हर चीज में करोड़ों में ही आ जाते हैं. So today, if I were to ask you कि every year how many BBA graduates are passing out in our country, can anybody hazard a guess? Average कितने BBA graduates हर साल इंडिया में ग्रेजुएट होते हैं? सर, एवरेज बैठ के एक रैंडम नंबर फेंकना. 1 लाख. भाई बोली चालू हो गई है. 1 लाख BBA ग्रेजुएट्स. एनीबडी वांट्स टू अप द बोली? 2 lakhs. उधर 5 lakhs. हाउ मच? 7. और बढ़ाओ. ऑन एन एवरेज 1 करोड़ नहीं यार, सभी BBA बन जाएंगे क्या? कुछ तो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे ना. हाँ, बट ऑन एन एवरेज 11 to 12 lakh BBA graduates are added in this country alone. कैसा लग रहा है? Are you feeling special? Not at all, right? Welcome to reality, है ना? तो 3 साल बाद जब वो चमचमाता हुआ पेपर लेके तुम लोग निकलोगे, तुम्हारे साथ और 11-12 लाख लोग भी वही चमचमाता हुआ पेपर लेके निकलेंगे. तो क्या डिफरेंस रह जाएगा लाइफ में? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बिकम एडल्ट्स? 18 साल के ऊपर कितने लोग? अच्छा, कितने लोग नहीं हुए हैं अभी तक? अमेजिंग, वी गॉट अ वेरी गुड मिक्स. इस साल कितने लोग हो जाएंगे एटलीस्ट एडल्ट? कितने लोग अगले साल तक वेट करेंगे? कुछ लोग. अब नाउ आई सी 4 or 5 hands, but whatever said and done, brand new adults are sitting here. Some really upcoming adults are coming into the game, and by next year everybody will become an adult. तो ये जो अभी बेनिफिट आप लोगों को मिल रहा है ना, अरे ये तो बच्चा है, अरे ये तो नादान है, अरे इसको तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है. जो एडल्ट हो गए हैं उनको द लेजेंडरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक राइट तो ऑलरेडी दे दिया है. कौन सा? वोट करो. हाउ मेनी ऑफ यू वोटेड? चलो ग्रेट. 5 साल बाद अगेन एवरीबडी विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वोट. 18 होते ही ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है. कितने लोग बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाए हो आज तक? वेलकम टू इंडिया, है ना? हमें कोई नियम कानून की जरूरत है थोड़ी ना. एंड इंसिडेंटली गर्ल्स, once you turn 18 you are allowed to get married also. अपने साथ साथ किसी और का जिंदगी खराब करने का भी पावर आपको मिलता है, राइट? The ma'am sitting here is like, what are you saying, man? Yes, boys, you will take 3 साल एक्स्ट्रा, है ना? एंड फिर ऐसे अननेसेसरी आपके ऊपर राइट्स और पावर्स और ये सारी चीजें मिलने लग जाएंगे. सो टुडे आई एम नॉट हियर. डू आई लुक लाइक ए रिलेशनशिप स्पेशलिस्ट? डेफिनेटली नॉट, राइट? सो जैसे मैम बता रही थी, आई एम ए ग्रोथ स्पेशलिस्ट. व्हाट इज ए ग्रोथ स्पेशलिस्ट? ऐसे सुना है कभी? ऐसे जार्गन वार्गन कभी? एज द वर्ड सजेस्ट, हम लोगों को कंपनी में बुलाया जाता है कि भैया ग्रोथ बढ़ाओ. ओके, नाउ whatever said and done today, by the time I end my session, whether we like it or not, all of us will actually grow 1.5 years older. Yes or no? 1.5 years ki 1.5 hours. Can we do anything to stop it? So ये जो 3 साल का मैं future gazing कर रहा था, no matter what happens, the calendar is not going to stop for you, the clock is not going to stop for you, and you will graduate, become adults, and be ready for the next stage of your life. How many of you want to do a post graduation after your graduation? BBA के बाद एक mandatory MBA तो लग ही जाना चाहिए ना. अब वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया. तो फिर उस नंबर पे आ जाते हैं. अगर 12 लाख BBA निकल रहे हैं हर साल, तो कितने लाख MBA निकल रहे हैं हर साल हमारे देश में? हाँ, कितना? 7-1 लाख MBA निकल रहे हैं, वो भी लाखों में ही चल रहे हैं. ये पता है हमें, फिर भी हम एक और पीस ऑफ पेपर ऐड करना चाहते हैं हमारे प्रोफाइल पे. क्यों? व्हाई? हाउ मेनी ऑफ यू एंजॉयड स्टडीइंग सो फार इन लाइफ? लेट्स बी ऑनेस्ट. हाँ बेटा, तू नर्वस मत हो. इफ यू एंजॉयड, व्हाट इज द बिग डील? नाउ लुक एट द पॉपुलेशन. 1 2 3 4. यहां किसी को भी मजा नहीं आया पढ़ाई लिखाई में. यहां एक को मजा आया, बाकी सब टॉर्चर होके यहां तक पहुंचे हो. और 3 साल टॉर्चर हो गए, और 2 और साल का प्लानिंग भी करके बैठे हो. क्या कर रहे हो तुम लोग? व्हाट आर यू वांटिंग टू डू? सो टुडे, पहले तो वेलकम. दूसरा, whether you like it or not, whether we want it or not, whatever said and done, one thing is guaranteed. These 3 years, like I said, are the golden years of your life. How you utilize them,
will define how you will grow in life. Can we move on to the next slide, please? Yeah, Lappy, हाँ. So the question is, BBA करने के लिए क्यों आ गए? Majority को तो मजा ही नहीं आया पढ़ाई लिखाई में अभी तक, right? फिर भी आ गए हैं. मतलब क्या है? क्यों ऐसा कर रहे हो अपने साथ? Are you guys old senior citizens? Are you even middle-aged uncle like me? You are hot-blooded youngsters, right? युवा. और तुम जानबूझ के मुझे जिस चीज में मजा आ ही नहीं रहा है वो करने के लिए आ गए. What is this? Is it family pressure? Is it peer pressure? What is it? क्यों क्या? It is not logical, right? मुझे मजा नहीं आया, मैं फिर भी आ गया हूं, आ गई हूं. ऐसा क्यों? कहां लिखा हुआ है कि भाई 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करना ही पड़ेगा? ऐसा कहीं लिखा हुआ है? तो फिर क्यों? अच्छा लगेगा एक और पीस ऑफ पेपर अपने फोल्डर में ऐड करके? यस? नो. That is what I'm going to be debunking here today, that pieces of paper really don't matter anymore. What actually matters is something else. So today we are going to figure out, so why are all of you here basically? मजा तो नहीं आ रहा है, मुझे पता चल गया. क्या हुआ, ये मैडम लोग धमका रहे हैं तुम लोगों को कि आ जाना, अटेंडेंस, ये आदमी को बुलाया, बहुत खर्चा हो गया है, एटलीस्ट वैल्यू फॉर मनी तो मिलना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा ही है? अब कहाँ भाग के जा सकते हो क्या? आ गए हो ना, अब फंस गए हो तो 1-1.5 घंटा एंजॉय करते हैं, ठीक है? सो द शेयर क्वेश्चन, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, व्हाई आर ऑल ऑफ यू हियर? सर, द रेड चेक शर्ट, आप इधर क्यों आए हैं सर? बीबीए तो पता ही है ना यार, लेकिन आज अभी जीएलएस यूनिवर्सिटी ओवरऑल लाइफ में क्यों पहुंच गए हो यहाँ पे? पता नहीं. अमेजिंग. कोई यहां से बीच में से डूड ग्रीन टी शर्ट वाला? हाँ, इसको पता भी नहीं था कि मैं ग्रीन टी शर्ट पहना हूं. कोई बात नहीं. हाँ बेटा, पता नहीं. अरे पता नहीं कैनॉट बी एन आंसर. कम ऑन, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग माइंड ब्लोइंग इनपुट्स फ्रॉम यू एनी विच वेज. सर आप क्यों आए यहाँ पे? जीएलएस यूनिवर्सिटी के बीबीए प्रोग्राम में आप क्यों आए हैं? शॉक हो गए हो तुम लोग को? कोई नशा वशा करा के एडमिशन जबरदस्ती करा दिया गया क्या? यू ओनली फिल्ड योर फॉर्म्स, राइट? यू ओनली पेड योर फीस, राइट? यू ओनली पेस्टेड योर पासपोर्ट साइज अगली फोटोग्राफ एंड देन यू डोंट नो व्हाई. अरे गिव मी स्टैंडर्ड आंसर्स तो दो. हाउ मेनी ऑफ यू कम हियर टू लर्न? 3-4 लोग. मैम देख लो सैंपल क्या आया यहाँ पे. ओके गुड. हाउ मेनी ऑफ यू कम हियर टू मेक न्यू फ्रेंड्स? थैंकफुली. कोई ऐसा एकदम ये बहुत इंट्रोवर्ट टाइप की लड़की लग रही है कि तेरे को दोस्ती वोस्ती नहीं करना है क्या? चलो कोई बात नहीं. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू गेट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर? चलो बहुत बढ़िया. बट बेसिकली व्हाई डू यू वांट टू लर्न? व्हाई डू यू वांट टू मेक फ्रेंड्स? व्हाई डू यू वांट टू गेट प्रैक्टिकल एक्सपोजर? ऐसा कुछ भी है जो यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है फ्री में? व्हाई? सर कैन यू प्रेस द बटन प्लीज? The simple answer is, you have come here to grow. कुछ growth आपके कंट्रोल में नहीं है, right? Like we just discussed, you will become adults no matter what happens. You will get your BBA degree no matter what happens. But there is some growth that if you align your minds towards from this day, it is going to make a world of a change in your life. So I'm going to talk about that. तो अभी तो clearly establish हो गया 2 चीज़ कि हमें पढ़ाई लिखाई में कोई खास मजे नहीं आए और हमें नहीं पता कि हम यहाँ क्यों पहुँच गए हैं. तो एक और सवाल पूछता हूं, हम में से कितने लोगों को मैथ्स पसंद है? मैथ्स. चलो गुड यार, बीबीए किड्स सम ऑफ देम एंजॉय मैथ्स. बाकी जितने लोगों को मैथ्स बिल्कुल नहीं पसंद है उन लोगों को मेरा 15-20 मिनट थोड़ा सा झेलना पड़ेगा. बताओ क्यों? क्योंकि रियल वर्ल्ड में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हें क्या पसंद है कि क्या नहीं पसंद है. रियल वर्ल्ड अपने हिसाब से आगे बढ़ता है. सो व्हेन वी से यू आर हियर टू ग्रो. Now for example, let's take my case. Almost 25 साल पहले मैं वहाँ बैठा था. Obviously पतला ही था उस टाइम पे. Obviously बाल ज़्यादा थे. So today if somebody asks me, have you grown in these 25 years? I can easily measure. उस टाइम पे I was 72 kilos. Now I'm 100 kilos. Have I grown? Very nice. That time I had 2 lakh hairs. Now I have 2000 hairs. Have I grown? Yes. The surface area of my skin has grown. I need more face wash than shampoo nowadays, right? So you can measure growth, right? But to be able to ascertain
the rate of growth is where we need to put a little bit of focus on mathematics. Growth को measure करने के लिए clearly एक variable जो चाहिए होता है वो है time. Time हमारे control में है क्या? नहीं है, but कुछ और हमारे control में ज़रूर है. We will talk about that. Okay, next slide please. So like I said, on one axis is time and on the other axis is growth. अब आते हैं next button दबाइए सर. Linear growth. What does the meaning, what does the word linear growth mean to you guys? Anybody? Sorry? One shot? Constant. Okay, how does linear growth look like? Like a straight line? Sir, button दबाएं. ऐसे ही दिखता है? Exciting है क्या? ना. Okay. कोई बात नहीं. सर, एक और बटन दबाएं. ये क्या है? अरे यार मैथ्स आ गया, हमको तो बीबीए इसीलिए हमने लिया था कि मैथ्स वाथ्स पढ़ना नहीं है. अरे भैया ऐसा नहीं है, बिजनेस मतलब नंबर्स, वी हैव टू मेक फ्रेंड्स विद नंबर्स. ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ लिनियर ग्रोथ दिस थिंग. तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. इसमें x कौन है? x कौन है? x टाइम है. रहने देते हैं, तुम लोग के मैथ्स में मैं ज्यादा नहीं घुसता हूं, ठीक है. बस ये याद रखना कि भैया लिनियर ग्रोथ का ये फॉर्मूला होता है. ओके, देन everybody said कि I'm assuming आप किसी घोड़े को नहीं बुला रहे हो. You're not liking growth of this phase. तुम्हारा करियर अगर ऐसा ग्रो करेगा, कितने लोग एक्साइटेड फील करोगे? कोई भी नहीं करेगा. कोई बात नहीं, थोड़ा एक्साइटमेंट लाते हैं. सर, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये सुन के भी थोड़ा ज्यादा सेक्सी लग रहा है. हाँ, अब इसका कोई फॉर्मूला बता सकता है मेरे को? मैथ्स के प्रेमी लोग जो हाथ खड़ा किए थे, आओ अब तुम्हारी बारी है. कोई भी फॉर्मूला नहीं बताना चाह रहे. चलो पहले ग्राफ दिखता कैसे वो देख लेते हैं. सर, ये तो थोड़ा ठीक लग रहा है, कर्व वर्व आ गया इसमें. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला? y इज इक्वल टू m टू द पावर x. अब इन दोनों में से क्या लगता है तुम लोग का ग्रोथ कैसे होना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है यार, दिस इज ग्रोइंग फास्टर, दिस इज लुकिंग मच बेटर. हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू ग्रो एक्सपोनेंशियली इन योर करियर? Some people want to grow exponentially, others are least bothered. She is like, I don't want to grow, man. Don't force me. Okay? However, my dear kids, ये भी बासी हो गया है. हम जो अंकल लोग आज आके यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं ना, we experience this kind of growth in our life. You people are the brand new models. और तुम्हारे लिए एक brand new growth formula लेके मैं नहीं आया हूँ. दुनिया के जो बड़े इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, थिंकर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, उन लोगों ने रिकमेंड तो क्या किया, ऑब्जर्व किया है दैट द ग्रोथ ऑफ करंट टाइम्स एंड द फ्यूचर टाइम्स इज गोइंग टू बी lovers. Very good. Factorial. What is a factorial? What is 5 factorial? What is 5 factorial? अरे नंबर बता, फॉर्मूला बता. Good, 120. Yes, that is correct. But what is the formula? You reduce one number, 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 multiplied by, बस 0 तक नहीं जाने का, ठीक है, वहां पे आके रुक जाने का. So when we say combinatorial growth, exponential growth का कर्व ऐसा दिखता है, linear growth का कर्व बड़ा बोरिंग दिखता है. combinatorial growth का कर्व कैसा दिखता है? Okay, very nice. हाँ, now the question is, if I tell you कि बच्चा पार्टी ये होने वाला है तुम लोग का करियर का ग्रोथ, are you feeling nice? You're feeling nice. Why are you feeling nice? पहले फॉर्मूला डालते हैं सर. Why are you feeling nice? How many of you are feeling nice? Good, good. Why are you feeling nice? सबसे बढ़िया दिख रहा है ना, मोटा है, लाल है, रॉकेट की तरह उड़ जा रहा है, इसीलिए. For obvious reasons, now let us try to put some numbers. Like we were saying, 3 साल बाद 2027 graduates, 5 साल बाद 2029
post graduates, right? So let us first put the value of x as 5. Sir, when x is 5, linear growth में y बेचारा धक्का मार मार के कहां तक पहुंच पा रहा है? 10 तक पहुंच पा रहा है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में 32 तक पहुंच पा रहा है, 3 टाइम्स, 3 गुना ज्यादा. कॉम्बिनेटोरियल में, लाइक आवर फ्रेंड हियर सेड, 120, विच मीन्स व्हाट? जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, टाइम, लेकिन जो चीज हमारे कंट्रोल में है, हमारा रेट ऑफ ग्रोथ, सिर्फ 5 साल में इतना डिफरेंस आ जा रहा है. इज दैट वेरी एक्साइटिंग? एक तरफ 10 है, एक तरफ 120 है. इज इट वेरी एक्साइटिंग? नो मैन, द एक्साइटमेंट विल बिगिन नाउ. ओके, 10 साल बाद तुम लोगों का क्या एज हो जाएगा? 28. Is a 28-year-old called an old man by any manner? No, you will still be very young, right? You just entered industry, 5-6 साल का work ex हो चुका होगा, business कर रहे होगे तो those kind of exposures. Let us change the value of now x to 10. y के साथ क्या हो रहा है लोचा? वो बेचारा 20 तक ही पहुंच पाया अभी तक. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या हो रहा है? 1024, 50 टाइम्स ग्रोथ हो जा रहा है. कॉम्बिनेटोरियल में अब आ रहा है मजा. हाउ मच इज दैट नंबर? 3,62,88,800. Now 20 years down the line when you will be my age, right? Let us change the numbers. Sir, why बेचारा 40 पे ही पहुंच पाया है linear growth में, exponential growth में 10,48,000 something. What is that number? Combinatorial growth वाला number. What is this number? Is it a million? Is it a billion? What is it? Huh? It does not matter what it is. What matters is क्या फर्क पड़ रहा है? Y पे किसी का भी कंट्रोल था क्या? टाइम पे किसी का भी कोई कंट्रोल था क्या? नहीं था. लेकिन ग्रोथ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हो रहा है इफ इट इज गोइंग टू बी कॉम्बिनेटोरियल, राइट? तुम सबकी शक्लें, लॉर्ड ऑफ यॉर्निंग कि यार ये आदमी आके हमें मैथ्स सिखा रहा है यार, सुबह सुबह गंदे ग्राफ दिखा रहा है, मिलियन है कि बिलियन है कि क्या है. सर टेक द, यही है ना? हाँ, अब क्या कहना चाहता हूं उस पे आ जाते हैं. ओके, लुक एट दिस ग्राफ. दिस इज नॉट मेड बाय मी, दिस इज अ ग्राफ. बाय एनी चांस कैन एनीबडी गेस? देयर इज नो नीड टू गेस, पता है ये क्या हो रहा है, राइट? दिस इज हाउ द ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट हैज चेंज्ड from 10,000 BC to 2019. GDP क्या होता है guys? Gross Domestic Product. Thank you. आप लोग जो business के students हैं, does the gross domestic product matter to you guys? You will contribute big time in building the gross domestic product of our country, of this world, right? But what is to be understood is 10,000 BC से लेके almost the year 1 तक, what was the GDP of the world? It was zero. धीरे धीरे बहुत गरीब टाइप से हमारा धरती आगे बढ़ रहा था. Then year 1 से लेके ऑलमोस्ट year 2000 तक भी क्या हुआ? कोई मेजर फर्क पड़ा क्या? तुम लोग कब पैदा हुए? तुम लोग 2000 के बाद पैदा हुए. That is where the actual excitement began. And after that what has happened? रॉकेट की तरह ग्रो कर गया कि नहीं? So what is the world GDP even as we stand today? पूरे दुनिया का GDP क्या है? Any guess? इस ग्राफ को देख के बताओ. 48 trillion was one answer. You will have to jack it up slightly. चलते हैं. It is not just economics or business. It is how life in general is. This is another graph. Of course, it's an inverted graph. The other one was ulta. This is उसका उल्टा. This says कि the moment life was formed on this planet, सबसे पहला जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जान आया था, उसमें से इवॉल्व कर करके we have become the most dominant species in the world. Homo sapiens. We have the biggest brains. We can do whatever we want to do. And when did Homo sapiens came? यहाँ दिख रहा है? पूरा सीधा होने में पूरा massive time लग गया. And the moment humans came onto this world, we started doing
all sorts of crazy stuff. And you guys are the latest brand new models of humans. मैं भी एक human हूं ना, तुम लोग मेरे से different क्यों हो? Are you different than me? Yes? How are you different? I am different, very good, but how? Sorry? बोलो हाँ, रिस्क टेकिंग. ओके भाई, पहले बिजली जब नहीं था ना, सांप घर में घुस आता था, वैसा रिस्क है क्या? नहीं. तो फिर द फर्स्ट डिफरेंस इज आई एम BG एंड यू गाइज आर AG. गेस G फॉर गूगल. जब मैं स्टूडेंट था, गूगल बोल के कुछ भी नहीं था भाई. देयर वाज नथिंग कॉल्ड एज अ सर्च इंजन. तुम लोग जब पैदा हुए तब तक गूगल आ चुका था क्या? तो you guys are actually younger than Google, right? So digital natives. So we were being prepared for a world where gathering information itself was a challenge. To you guys, gathering any sort of information, is it a challenge? It is available at the click of a button, right? And it is only going to get more intense in the future. Do we agree that? Right? So that ways you are a very different breed of humans. You are still Homo sapiens only. हम लोग का DNA almost same ही है. Right? लेकिन the exposure that you have gotten so far in your life is far different than what your grandmother would have done. So I was reading somewhere, entire 18th और 19th century में जितना content create हुआ है, let that be books, let that be drama, let that be painting, आज की डेट में इंटरनेट पे एक सेकेंड में उससे 50,000 times ज़्यादा content create होता है. That is what you people are born into. Should we feel great about it? We must feel amazing about it, isn't it? अब आते हैं रिस्क पे. आगे बढ़ते हैं सर. ये है एक अजीब सा ग्राफ. अब तुम लोग गूगल के बाद पैदा हुए, उसमें तुम लोगों का क्या योगदान है? कोई योगदान है? तो गो बैक होम टुडे, थैंक यू पेरेंट्स, परफेक्ट टाइमिंग कि भैया गूगल के बाद मुझे आपने धरती पे लाया, थैंक यू सो मच, राइट? बट आप लोगों के पैदा होने से पहले ये जो ब्लू वाले 4 डिब्बे दिख रहे हैं ना, everybody must have heard about this. We have all heard about the internet. You guys are the generation that is the digital native generation जिनको बोला जाता है, right? We have heard about social media. तुम लोग के बाद फेसबुक भी इन्वेंट हुआ. आज की डेट में लेटेस्ट क्या चल रहा है? इंस्टाग्राम चल रहा है. आर वी श्योर? रेडिट चल रहा है. वी विल कम टू दैट स्लाइटली. मोबाइल, obviously when we got mobiles, ask some of your teachers also, पहले जो इतना बड़ा ईंट के साइज का मोबाइल आता था, if you are angry with someone you can simply hit that person and he might not live to see another day. इनकमिंग कॉल के लिए 16 रुपए देने पड़ते थे. It was a status symbol to give missed calls, right? 16 रुपए for incoming calls, 32 rupees for outgoing calls. Today how much do you have to pay for any call? 0. Right? तो मोबाइल एंड फिर क्लाउड. हाउ मेनी ऑफ यू डू नॉट यूज गूगल ड्राइव और एप्पल क्लाउड? वी ऑल अंडरस्टैंड क्लाउड. एंड लास्ट थिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स. आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ योर प्रोफेसर्स ऑन माय वे हियर. यू अपेरेंटली ऑल्सो हैव अ स्पेशलाइजेशन इन योर BBA ऑन डेटा एनालिटिक्स, राइट? तो ये जो ऊपर वाले 5 ब्लू कलर के डॉट्स हैं, आर द डॉट्स जिसके ऊपर मैनकाइंड आप लोगों के पैदा होने से बहुत पहले से काम कर रहा था, जिसके वजह से आप लोग इसके बहुत कन्वीनियंट बेनिफिट्स को यूज करते हैं, राइट? टुडे हैड इट बिन ड्यूरिंग माय कॉलेज टाइम और मेरे कॉलेज में कोई गेस्ट को लेने जाना पड़ता, डिड वी हैव, सर अपना लाइव लोकेशन मुझे भेज दो, मैं ऐसा कर पाता क्या? वॉज देयर गूगल मैप्स? वॉज देयर व्हाट्सएप? You are therefore born into some sort of privilege. And as we start moving downwards, slowly you can see these green color dots coming in. 3D printing. How many of you have seen a 3D printer? Very good. Renewable energy. Do we understand what renewable energy is? We do. Internet of Things. ये क्या है? Internet of Things क्या है? How many of you have smart air conditioners at your home? You have? How do you talk to that air conditioner from your mobile phone? It is because 2 devices are talking to each other. पहले एक रिमोट लगता था ना,
अब फोन से कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? फोन से कार्स को कंट्रोल कर सकते हैं आज की डेट में, राइट? देन कॉग्निटिव सिस्टम्स. Very recently, there was this massive disruption which happened, known as Chat GPT. We all have heard about Chat GPT. What is Chat GPT, guys? AI. Very good. But what is AI? Oh, thank you. ये तो मेरी दादी भी बता देगी. What exactly is AI? कौन सा टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी नहीं होता यार AI. Basically, you're trying to teach a software how to think like a human being, right? Yes or no? Chat GPT को, how many of you have actually never used Chat GPT? अरे have some shame, have some shame. लेटेस्ट मॉडल हो इंसान का, लेटेस्ट मॉडल टेक्नोलॉजी का तो यूज कर लो. Chat GPT यूज करने के लिए कितने करोड़ रुपए लगते हैं? कितने करोड़ रुपए लगते हैं Chat GPT यूज करने के लिए? जीरो. एक अमेजिंग टेक्नोलॉजी फ्रीली अवेलेबल है और हमने उसको यूज नहीं किया. Please use it. Others who have used it, how have you used it? What have you used it for? Don't tell me homework करने के लिए. ये सब चल रहा है आजकल. That life of teachers is becoming tougher and tougher. With absolutely human intelligence, which was as it is very challenging, now mix artificial intelligence to it. Life of teachers is going to be very tough in the future. Any which ways, ये जो cognitive systems हैं, these are how you train machines to think like human beings. Okay? Nanotechnology. What is nanotechnology? सर हम BBA के स्टूडेंट्स हैं, हमने साइंस को बहुत पहले नमस्ते कर दिया था. अरे तो इंग्लिश है यार, ये साइंस नहीं है. नैनो मतलब छोटा, टेक्नोलॉजी मतलब दिस machine that I am carrying and which everybody is carrying in their phones, compared to a supercomputer or the first computer that was built in the world, कितना बड़ा था पहला कंप्यूटर जो बना था? Any clue? ये जो स्टेज है इसका डबल कर लो. And was it as powerful as the phones that you are using today? What is happening? Slowly, steadily, everything is becoming smaller but more powerful, right? So that is nanotechnology. And of course, robotics. We all appreciate what robotics are. So even as you people are going to be spending 3 years of your youth in college, इंडस्ट्री में क्या चल रहा होगा उस टाइम पे? ये जो ग्रीन और ब्लू वाले मिक्स्ड डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये और सॉलिड होते जाएंगे और ब्लू होते जाएंगे. Which means what? Which means you guys are going to somehow be leveraging these to build your careers, your wealth, your lives. Okay? ये 4 स्तंभ जो खड़े हो गए उस पे we made our careers. So for example, my first job after graduating from my B school was with a telecom company. We used to go to tier 2, tier 3 towns in our country and tell people कि मम्मी, आंटी, ये मोबाइल फोन है, इसमें तार नहीं लगता है, इसमें कहीं पे भी घूम के आप बात कर सकते हो. Today, is there anybody who does not understand what a mobile phone is? Everybody really appreciates that, right? And as research will continue to move along this line, there is parallelly this other gray line. ये देख पा रहे हो आप लोग? यहाँ क्या क्या लिखा हुआ है यार? Autonomous vehicles. Have you heard about this word before? What is an autonomous vehicle? ड्राइवर की जरूरत नहीं, खुद ही चलता है. एनी मॉडल, एनीबडी कैन टेल कि कौन सा ऑटोनोमस व्हीकल है? टेस्ला. एवरीबडी नोज दैट. व्हाट इज द शेयरिंग इकोनॉमी? हैव यू हर्ड अबाउट द शेयरिंग इकोनॉमी? ओला, उबर सुना है हमने? ओला में गाड़ी किसकी होती है? हमारी होती है क्या? ड्राइवर वाले की होती है. लेकिन थोड़े देर के लिए हम उसकी गाड़ी को शेयर करते हैं ना, एंड वी पे फॉर इट, राइट? सो सम फ्रंटियर, स्मार्ट सिटीज. हैव यू हर्ड अबाउट स्मार्ट सिटीज? Some of these things you have heard, many such things. For example, the energy internet. ये सुना है क्या किसी ने? एनर्जी सुना है? इंटरनेट सुना है? स्टैंड अलोन सुना है? मिला के सुना है क्या? क्यों नहीं सुना है? Because these are industries of the future. Whose future? मेरा हो गया भाई, मैं 20 साल से ऐसी तैसी करा रहा हूं अपना. If I am expected to learn new things at this age, it is not going to happen. Biology will work against me. Can you teach an old dog new tricks? You cannot. But what about you guys? You are the youngsters who will build your lives and careers in this direction. And ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा world इसमें सीमित हो जा रहा है. What is interesting to note, however, is this part. ये बीच में जो चीज़ें 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखी हुई हैं,
What are these looking like? For example, ये जो 4 नंबर वाला जो सर्कल है, उसमें थोड़ा सा नैनो टेक्नोलॉजी भी घुस रहा है, थोड़ा इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी घुस जा रहा है, थोड़ा रिन्यूएबल एनर्जी भी घुस रहा है, और उधर आउटपुट में एनर्जी इंटरनेट भी निकल रहा है, शेयरिंग इकोनॉमी भी निकल रहा है. सो ये जो बीच वाला जो पार्ट है, all these lines, etc., 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 what is this looking like? Hello? Jago, what is this looking like? Come on, take a guess. Sorry, connections, okay. Slightly better answers, please. Sorry? Combinations? No, definitely not. अरे कैसा दिख रहा है? Interconnected? No. Updated कहाँ दिख रहा है यार? एकदम dumb it down. मेरी दादी को अगर पूछेंगे कि दादी बीच में जो लाइन जा रहा है, ये कैसा दिख रहा है? Like a web. Thank you, sir. Like a web, like a network. But what kind of web? What kind of a network? Can you press the button once more? These actually look like neural networks. Have you heard the word neural networks before? We have. What are neural networks? सबसे common example neural network का क्या है, boys and girls? हमारा brain. ऐसा कोई है यहाँ पे जो अपने skull के अंदर बिना brain के घूम रहा है? नहीं ना, सबके पास है. Biology has ensured that we have the biggest brain amongst all the species that live here. And for example, today you see a very छोटू infant सा बच्चा, okay? And उस बच्चे को अभी तक ये नहीं पता कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है. तो क्या वो बच्चा जाके आग में हाथ डाल देता है? हाँ या ना? How many of you say हाँ बच्चा हाथ में आग में हाथ डाल देता है? अरे डाल देता है? नहीं बोल रहा है. नहीं डालता है ना? क्यों नहीं डालता है? उसको कैसे पता है? 1.5 साल का बच्चा कुछ बोल भी पाता है क्या ढंग से? लेकिन वो आग में हाथ क्यों नहीं डालता है? उसको डर लगता है. वो डर कहां से आता है? दिमाग से आता है. वो उसके दिमाग में वो डर डाला किसने? मम्मी पापा ने. वेरी गुड. बट अभी वी सेड कि भाई 1.5 साल के बच्चे को क्या समझ में आएगा? तो मम्मी पापा ने उसके दिमाग में वो डर कैसे डाला है? दिखा के? जी नहीं. There are certain things that we learn genetically, right? And there are other things for which we need to take education, okay? और ये सारी चीजें नेचर ने डिजाइन करी हैं. And finally, mankind, humanity has reached a stage where we are able to create stuff which actually nature can also create. And therefore, multi-dimensional, some things you learn from your genetics, some things you learn from academics, something you learn from society, and other things you learn from your own mistakes. Once you blend all of that together is where the actual magic begins to happen. पहले क्या हो रहा था? Linear path. Now, for example, मेरे parents, they had grown, वो जो 3 ग्राफ था, मेरे parents कितने उम्र के होंगे अभी? If I am 43, they must be senior citizens. When they were born, India was a very rich country or what? India was just out of another war with China, from Pakistan, and वहाँ पे बहुत गरीबी थी हमारे देश में, and the most aspirational thing to do was to get a government job. Government job के लिए क्या करना पड़ता है guys? एक ट्रैक, कोई कॉम्बिनेशन नहीं चलता वहाँ पे. एक ट्रैक पे आ जाओ, यूपीएससी का एग्जाम लिखो, क्रैक करो, सरकारी नौकरी पाओ, फिर उस नौकरी में कितने साल टिकने का? रिटायरमेंट तक टिकने का. सिंगल ट्रैक करियर होता था. सो व्हेन वी वर बॉर्न, व्हाट डिड दे थिंक? कि हमारे बच्चे लोगों के लिए स्ट्रेट ट्रैक के करियर में उनको डालो. उस टाइम पे सिर्फ 2 ही चीजें ग्लैमरस होती थी, या तो इंजीनियर बनो या तो डॉक्टर बनो, राइट? Unfortunately, engineer. But the moment we went into engineering, and in the second year, for the first time, I saw something magical, which was the internet. For the first time, there was this website called as yahoo.com. How many of you have seen Yahoo? Is it alive? Is the website alive today? It is very much, but does anybody visit Yahoo today? No, but that time it was the coolest thing possible. Dial-up modem connection देखा है किसी ने? एक तार होता था, एक मशीन में जाता था, चू 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 करके आवाज़ होता था, फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर खुलता था, और लेजेंडरी स्पीड्स आते थे उस टाइम पे, 124 kbps.
अब yahoo.com करो, एंटर मारो, नीचे जाओ, लारी पे चाय वाय पी के ऊपर आओ, फिर वो पेज डाउनलोड हो जाता था, राइट? फ्रॉम देयर टू टुडे, व्हाट आर द स्पीड्स दैट मिस्टर मुकेश अंबानी इज गिविंग अस? 100 Mbps. What is he promising? 1 Gbps, right? तो द मोमेंट इंटरनेट केम इन, हमारे जनरेशन को फॉर द फर्स्ट टाइम समझ में आएगा, अरे भाई दुनिया तो बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट नौकरी से तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है. एंड फॉर्चुनेटली अगेन बिकॉज ऑफ टाइमिंग, in the early 90s, the government of India decided to liberate our country. Liberate us in what sense? Globalize, allow foreign brands to come in. Today, how many of you have never had a Coca-Cola? Everybody has had a Coca-Cola. McDonald's, Domino's, Levi's jeans, iPhone. I remember in the year 1994, कोका कोला वापस इंडिया आया. पहले हम लोग बहुत क्रांतिकारी टाइप के लोग हुआ करते थे, भाग जाओ हम तो गंदा कोला पियेंगे एंड ऑल दैट वी यूज्ड टू डू, ओके. बट 1994 में कोका कोला वापस आया. मी एंड माय किड ब्रदर वर सुप्रीमली एक्साइटेड कि भाई कोका कोला पियेंगे. तुम में से कोई भी कोका कोला को लेके सुप्रीमली एक्साइटेड फील करता है क्या? उल्टा टुडे योर जनरेशन इज लाइक गोइंग अवे फ्रॉम दिस शुगरी ड्रिंक्स, राइट? यू बिकमिंग मोर हेल्दी एंड ऑल. सो व्हाट आई एम बेसिकली ट्राइंग टू से इज, जैसे इंटरनेट आया, माई जनरेशन अंडरस्टूड कि भाई ये प्राइवेटाइजेशन का वेव आने वाला है इंडिया में, गवर्नमेंट नौकरियां में इतना ग्लैमर अब रहा नहीं है, वी मस्ट ट्राई टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर द नेक्स्ट वेव. एंड दैट इज वेयर 3 very big industries built our country to what we are today. First is of course the IT and the ITES industry, right? We all know India as the IT superpower of the world. कब चालू हुआ ये सारा गेम? Around 24 years ago, 2000 से, जब Y2K बोल के एक इशू आया था. Have you heard about the Y2K issue? None of you have heard about it. भाई जो कंप्यूटर साइंटिस्ट पहले थे ना, वो इतने बेचारे भोले थे. DDMMYY फॉर्मेट पे इन्होंने कंप्यूटर्स बनाया. DDMMYY मतलब ईयर. जैसे ही 1998 आया, किसी को लगा कि ए भाई 2 साल बाद YY में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. Means what? Is it 2000? Is it 1900 or what? And suddenly there was this massive requirement of people across the world जिनको जाके कंप्यूटर्स का कैलेंडर में डेट चेंज करना था. DDMMYY. कहाँ पे बल्क में लोग मिलते हैं? इंडिया में मिलते हैं जो इंग्लिश बोल पाते हैं. एंड दैट वाज द रीजन व्हाई द आईटी इंडस्ट्री स्टार्टेड बिल्डिंग इन आवर कंट्री. ऑफ कोर्स इट वाज नॉट एज इजी एज दैट और नॉट एज फंडामेंटल एज दैट, बट समथिंग ऑन दोज लाइंस. फिर 2-3 और बड़े वेव्स आए हमारे कंट्री में. द प्राइवेट बैंकिंग वेव. हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉन टू अ सरकारी बैंक इन योर लाइफ? कैसा है? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? लंच टाइम के बाद आना अभी भी चल रहा है क्या? अमेजिंग. हमारे टाइम पे अगले महीने आना, ऐसा बोला करते थे, राइट? मेरा पैसा है भाई, मेरा खाता है, राइट? बट टुडे यू वॉक इनटू एनी प्राइवेट बैंक, डू यू इवन नीड टू वॉक इनटू अ प्राइवेट बैंक? मोबाइल बैंकिंग जिंदाबाद, राइट? बट बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस एज एन इंडस्ट्री hired lakhs and lakhs of people, right? And the third biggest industry was the retail industry. अहमदाबाद में ऐसा कौन है जो आज तक मॉल में नहीं गया है? उल्टा आजकल मॉल इतना बोरिंग होने लग गया है कि हम सब Amazon जिंदाबाद और Blinkit जिंदाबाद और Instamart जिंदाबाद करने लग गए हैं, राइट? दैट रिटेल इंडस्ट्री अगेन, जहां लाखों करोड़ों में लोगों को हायर किया गया और इंडस्ट्री को ग्रोथ मिला, राइट? नाउ इज देयर एनी अदर सेक्टर इन विच that kind of massive hiring or talent is going to be required in India or abroad? Quick commerce? But what kind of talent? How many of you want to become delivery boys and girls? तो भाई उसमें डिमांड होगा भी तो क्या कर लेंगे? और बताओ. The sad truth is, अब ऐसा कोई भी इंडस्ट्री मुझे तो नहीं नजर आ रहा है और काफी लोगों को नजर नहीं आ रहा है जहां बल्क में रिक्रूटमेंट होगा, बल्क में हायरिंग होगा. What does it mean? It simply means one very simple fact, कि जिस तरीके से हम लोगों ने हमारे ग्रेजुएशन में हमारे करियर की तैयारी करी थी, अगर आप लोग भी उसी ट्रैप में फंस गए, बहुत मेजर नाइंसाफी करेंगे आप लोग. किसके साथ? किसके साथ नाइंसाफी करेंगे? अपने आप के साथ. फॉर एग्जाम्पल, I have studied in a hostel for the largest part of my life. When my dad dropped me off at engineering college, I was very excited कि भैया finally freedom.
फ्रीडम फ्रॉम टू थिंग्स, अब यूनिफॉर्म नहीं पहनना पड़ेगा, स्कूल में तो यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है ना, एंड सेकेंड थिंग, घर पे नहीं रहना यार, यू लिव इन अ हॉस्टल फ्री लाइफ, राइट? एंड द ओनली एजेंडा वॉज, हाँ पढ़ाई लिखाई तो हो ही जाएगा, 4 years ऑफ फुल ऑन चिलिंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग गोल्डन डेज ऑफ योर लाइफ आर हियर। तुम लोग का भी ऐसे ही कुछ आइडिया है क्या? यूनिफॉर्म तो तुम में से कोई नहीं पहन रहा है, हॉस्टल में तो कोई नहीं रहेगा यहाँ पे, कि रहेगा? कुछ लोग रह रहे हैं, कोई बात नहीं, बट बाकी 3 साल क्या करना है कॉलेज में? क्या करना है? चिल मारना है, प्लीज मारिए। बंक मारना है, प्लीज मारिए। मैं कौन होता हूं, मैं कुछ भी बोलूंगा, मेरी बात क्यों मानोगे तुम लोग? हाउ एवर वी हैड दैट लग्जरी कि अभी तो पढ़ रहा है, अभी तो ग्रेजुएट है। एट द सेम टाइम वी हैड सर्टन अदर हैंडीकैप्स ऑल्सो, आई विल टॉक अबाउट दैट स्लाइटली लेटर। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? सो माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, जैसे मैं बता रहा था, दुनिया इस ट्रैक पे जा रही है, ग्रीन कलर के लाइन पे रिसर्च चलता रहेगा, इंडस्ट्री ये ऑरेंज वाले डॉट्स पे जाती रहेगी, देयर इज नो नीड टू टेक फोटोग्राफ्स और व्हाटएवर, दिस इज फ्रीली अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। दिस एंटायर ब्लैक जोन जो दिख रहा है ना, जिसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट वर्कर, द चेंजिंग नोशन ऑफ वर्क, power to the individual, fall in working age population, these are the macro forces that are going to dominate your lives and your careers. अब ये फिलहाल देख के बहुत स्केरी लग सकता है, ये फिलहाल देख के बहुत ऑकवर्ड लग सकता है, ये फिलहाल देख के लग सकता है यार मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, मैं तो चिल करने आया था, ये आदमी आके हमें जबरदस्ती डरा रहा है। भाई तुम्हारी भावनाओं की बाहर वाले दुनिया में कितनी कदर है, कितनी कदर है? डज योर ओपिनियन मैटर? शुड इट मैटर? इट शुड मैटर बट इट डज नॉट मैटर। व्हाट डज दैट मीन? Life is like that only. Nobody owes you anything. The only person whom you owe something is you yourself. So मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट जोन में अगर पा रहे हो, सिंसियर रिक्वेस्ट है, जाग जाओ। Unfortunately for you guys, the classic difference is, for example, when I was a youngster, I was clearly competing with 3 types of people. First was my own batchmates. अपने लेफ्ट और राइट साइड में देख लो, ये तुम्हारे दोस्त हैं, इन्हीं के साथ तुम्हें compete करना है। कहाँ पे compete करोगे? एग्जाम्स में, पीस ऑफ पेपर में। वो असली कंपटीशन होता है क्या? असली दुनिया में when you go out to compete, I was competing first with my batchmates, second with people who are much better than me, the IITians, the IIM graduates, those Ivy League dudes, and a large chunk of India at that point in time which had zero access to the internet because of some form of privilege, because I was born probably in a good family who wanted focus, wanted to invest in my education, etc. We got that added advantage of having access to certain information which was not available to a large mass of our people in our country. आज ऐसा कौन सा गांव है हमारे देश में जहां इंटरनेट अवेलेबल नहीं है? तो ऐसा क्या इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास पहले आ जाएगा जो लेट अस से हिम्मत नगर के किसी लड़के के पास नहीं आएगा, या आई डोंट नो खेड़ा के किसी बच्चे के पास वो इंफॉर्मेशन नहीं आएगा? So that becomes the first challenge for you guys. You are preparing, rather you are born, you are youngsters of Industry 4.0, which is the information era. Information is freely available. और तो और तुम्हारी जिंदगी और कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती जा रही है? इंसान ही नहीं, तुम लोगों को एक और टाइप के स्पीशीज के साथ कंपीट करना पड़ेगा। कौन है ये लोग? AI। हम सबको पता है ये सब होने वाला है, तो करने क्या करना चाहिए फिर? क्या करना चाहिए? Can a human being be better than AI? Of course, yes. We will talk about that. Let's move on. Sir, जनरल नॉलेज तो ठीक ही है ना हम लोग का? हाँ, मुस्कुरा रहे हैं लोग। अरे सर, हाँ, कौन है? Has anybody any clue about who this gentleman is? Of course, you will have no clue. Please, अब पढ़ लो थोड़ा। कौन है? रे कर्ट्सवेल। Forget his name for a matter for some time. What is his designation? Director of engineering of which company? Google. Google कैसा कंपनी है यार? ठीक है, हाँ, Google तो ठीक ही है ना, कि क्या है?
Google is the gold standard of innovation. Is there anybody in this room who has never been touched by Google or one of its products? Everybody, right? Is there anybody in this room who believes that future mein Google and its products will lose their relevance or impact on your lives? Definitely not. But what is most important to know is this gentleman is widely acknowledged as the #1 futurist of the world. Futurist कौन होता है यार? जैसे कॉम्बिनेटोरियल में गैस मारे थे अपन, फ्यूचरिस्ट में बहुत इजीली गैस मार पाएंगे. व्हाट और हु इज अ फ्यूचरिस्ट? जो फ्यूचर में होने वाला है उसको प्रेडिक्ट करो और फिर बस प्रेडिक्ट कर लो कि 2025 में वर्ल्ड वॉर होगा, ऐसा. यस, उसके अकॉर्डिंगली यू स्टार्ट वर्किंग टुडे सो दैट यू आर एबल टू लेवरेज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर. लेवरेज मतलब take advantage of. Okay, now if we have been using many products designed by this gentleman, इनके एक statement पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. Sir, what our friend Ray Kurzweil is trying to tell us is, we won't experience 100 years of technological advance in the 21st century. We will witness on the order of 20,000 years of progress, or about 1,000 times greater than what was achieved in the 20th century. As a person who was born in the 20th century, मैं वैसे भी तुम लोगों से एक सेंचुरी पहले पैदा हुआ हूँ. हमारे 20th century में 100 years में 100 years का प्रोग्रेस हुआ था. ऐसे ही होना चाहिए ना, 100 साल में 100 साल का प्रोग्रेस होना चाहिए था. तुम लोग कौन से सेंचुरी में पैदा हुए हो? 21st century. उसके कितने साल खत्म हो गए हैं? 24 साल, 23.5 years खत्म हो चुके हैं. 76.5 years are remaining. And this gentleman is saying कि भैया इस बार क्या होगा? 100 साल में 20,000 साल का ग्रोथ होगा. कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? सब हाथ अभी से हथियार डाल दिए हो क्या? वो जो लाल रंग का सेक्सी रॉकेट उड़ रहा था, ये वही है. 20,000 years of growth will be experienced in 100 years. What does that mean to be a youngsters in college today? What does it mean? Lot of opportunities, very good. ये बड़ा ही optimistic सा लड़का है कि भाई 20,000 times growth होगा तो उसका कुछ तो मुझे फायदा होगा. How many of you feel as your friend here is feeling? Some of you are feeling. Others, what is going on? बाकी लोगों का क्या, नींद आ चुका है? So कोई तकलीफ नहीं है. नींद is very good, very healthy. दुनिया लेकिन 20,000 के स्पीड से आगे बढ़ जाएगी. Okay, so in a manner it is excellent that this kind of growth is going to happen, but in a manner it is going to impact which generation the most? It is going to impact you guys the most. Why? Why? ओके, पैसेंजर ट्रेन में बैठे हो. पैसेंजर ट्रेन में बैठ के फुल एक्साइटमेंट भी दिखा देने से ट्रेन का स्पीड बढ़ता है क्या? आई एम हेवीली एक्साइटेड. बट क्या होगा पैसेंजर ट्रेन के साथ? क्या होगा? वो तो अपने हिसाब से चलता रहेगा. अब वंदे भारत में बैठ के डिप्रेस्ड, एकदम डिप्रेस्ड हो जाओगे और बैठ जाओगे तो वंदे भारत स्लो हो जाएगा क्या? वंदे भारत अपने स्पीड से चलेगा. तो वेदर यू लाइक इट और नॉट, तुम लोग पैदा ही हुए बुलेट ट्रेन के जनरेशन में यार. तुम लोग अगर खिड़की के बाहर देख के सीनरी एंजॉय करना चाहते हो, ना हो पाएगा क्योंकि तो रॉकेट की तेजी से निकल गया वो. ऑलराइट, सो यस, इट हैज टू बी लुक्ड एट विद अ फेयर डिग्री ऑफ सीरियसनेस. क्या यार, अभी अभी मैं तो जवान हूं, अभी तो जस्ट आया हूं मार्केट में, ये सब क्या हो रहा है? कैन यू कंट्रोल इट गाइज? यू कैनॉट. सो व्हाट शुड यू डू? इतना सन्नाटा तो मैंने कभी नहीं देखा लाइफ में. शॉक. तुम लोग के लिए एक और मीम लाया हूं, लेके जाना भाई. नहीं, उसके बाद चलो वो आप लोगों के लिए मीम में बाद में दिखाता हूं. पहले आते हैं जनरल नॉलेज पे. लेफ्ट साइड वाला लोगो कौन सा है? वेरी गुड. सम ऑफ यू हैव स्टिल नॉट यूज्ड इट. सिंसियर रिक्वेस्ट, प्लीज स्टार्ट यूजिंग इट. ChatGPT was heralded as one of the fastest growing software product in the world. Okay, so can we press the button?
To reach 100 million users, ChatGPT took 2 months. सबसे पहला मास मीडिया वाला जो टेक्नोलॉजी आया था दुनिया में, उसका नाम था रेडियो. रेडियो को 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगा था? एनी रैंडम गेस? एनी रैंडम गेस? हाँ, 20 years? The actual answer is 32 years. 32 years लगा था रेडियो को 100 मिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए. उसके बाद गूगल आया, उसके बाद फेसबुक आया, लेटेस्ट हॉटेस्ट आइटम जो ये आया था चैट जीपीटी, इसको कितना टाइम लगा? 2 महीना. उसके साइड में जो जलेबी टाइप का लोगो है, थ्रेड्स, सबको पता है. हाउ मेनी ऑफ यू आर ऑन थ्रेड्स? गुड, सम ऑफ यू आर ऑन थ्रेड्स. तो थ्रेड्स को कितना टाइम लगा 100 मिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए? 5 days. तो मैं जो वो रॉकेट और ये ब्लू ग्राफ और रेड ग्राफ और कॉम्बिनेटोरियल और दुनिया का जीडीपी और ये सब बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों के सामने है. और इसी साल कोई ना कोई नया इनोवेशन आएगा, कोई ना कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ ही जाएगा. उसको 100 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने के लिए 5 दिन से कम लगेगा कि ज्यादा? वी मस्ट बेट ऑन दैट. सो वेदर वी लाइक इट और नॉट, वी आर, हाउ मेनी ऑफ यू आर यूजिंग थ्रेड्स रेगुलरली? Some of you are using threads regularly. That is my first मूल मंत्रा to you people. As India, हमारे देश का सबसे बड़ा issue क्या है? We are the biggest country in the world when it comes to population. तो दुनिया का हर टेक्नोलॉजी, हर प्रोडक्ट के लिए हम बहुत अमेजिंग एक मार्केट हैं. Unfortunately, we are a market of consumers. For example, let us do an average survey. Dude, black t-shirt, black shirt, तू रोज इंटरनेट पे कितना टाइम स्पेंड करता है यार? Be very honest. 4-5 घंटा. यह है 4-5 घंटा. इससे ऊपर वाले हाथ खड़ा करें. अमेजिंग. कितना? 7-8 घंटा वाला कितने हैं? 9 घंटा. गर्व से कोई बोल रहा है. इसको कोई बीट करना चाहता है क्या? 9 घंटे के ऊपर वाला. ये दो, डरा दो मुझे, डराओ. हाँ, 14 to 15. ये घर पे नहीं रह रहा है, ये इंटरनेट पे रह रहा है. 14 to 15 hours he is spending on the internet. Anybody wanting to beat that number? चलो, 14 to 15. In my simple research that I figured out, इंडस्ट्री का ये कहना है कि आपका जनरेशन ऑन एन एवरेज 8 hours इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है. ओके, क्या करते हो रे 15 घंटे? क्या करता है? आई एम वेरी क्यूरियस. Either you would be a gamer is what I'm assuming. No, you're not a gamer. Only fans. तुम लोग का सेंस ऑफ ह्यूमर किस स्टैंडर्ड का ये तो समझ में आ रहा है. कोई बात नहीं. हाँ जी, 15 घंटे क्या कर रहे हो यार इंटरनेट पे? रिसर्च. अरे अरे, यहां पीएचडी स्कॉलर लोग बैठे हैं. बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. वेरी गुड. लेट मी टेल यू आप लोग क्या कर रहे हो. आप लोग इंस्टाग्राम पे, रील पे, दुनिया के खत्म होने तक doom scrolling, the strongest muscle of your body. Otherwise I swipe left, swipe right, वो Tinder, Bumble, ये पूरा गेम चल रहा है इस तरफ, या तो ये ऐसा ऐसा चल रहा है at best, या ऐसा 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 चल रहा है. हैं? वेरी गुड. ये सब आइटम बनाया ही गया तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को फंसाने के लिए, तुम्हारी भरी जवानी के 15 घंटे चूस लेने के लिए. रिसर्च तो तू नहीं कर रहा है. ठीक है. तो भैया मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहे कुछ भी बोल लूं, तुम लोग मेरी बात क्यों मानोगे? बट इंस्टेड ऑफ जस्ट बीइंग कंज्यूमर्स, फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम पे अपने जीवन के भरी जवानी के 5 घंटे डालने के मार्क जुकरबर्ग आपको कितना पैसा दे रहा है कि ब्रो 5 hours ऑन इंस्टा $500, ऐसा कुछ चल रहा है? तो 15 घंटे में तो ये मिलियनर बैठा ही है हमारे बीच में, है ना? ऐसा तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है. So we have unfortunately become a country of consumers. We are only consuming. Should we stop consuming? No. At the same time, we must also start creating. जो क्रिएट करता है उसका वैल्यू होता है. तो अगर कोई तुम्हारे सर्किट में कोई इन्फ्लुएंसर है क्या? कोई भी इन्फ्लुएंसर नहीं है. तुम तो इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते होगे? नहीं करते हो. ऐसा क्या? फिर 15 घंटे इंस्टाग्राम पे कहां जा रहा है कि हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो?
से लेके गुलाबी साड़ी और होठ लाल लाल से लेके जो भी चल रहा है, ठीक है, जो भी, एवरी डे वी आर डिस्कवरिंग more deeper depths of cringe and we are consuming it and continuing to consume it. लेकिन वो जो cringe creators है, वो वड़ा पाव गर्ल from Delhi, I mean for an Ahmedabadi you are telling us वड़ा पाव, and उसमें तुम क्या कर रही हो, फीता काट रही हो जाके, 4 लाख रुपए मिल रहे हैं उसको यार शोरूम ओपन करने के लिए. तो while she is a creator and she is making money out of that entire endeavor, what are we doing? हाँ, वड़ा पाव गर्ल है. तो भैया ये हमें समझना बहुत जरूरी है that these innovations are created to have a large audience in mind. But if we remain only consumers, we are doing not just ourselves a major नाइंसाफी, we are doing very wrong to the great country that we are born in. भैया ये इंडिया का टाइम है. India is banking on you guys. When the entire world's eyes are on our country as a market, it is up to you guys to tell them that we are not just a country of consumers, we are a country of creators, we are a country of innovators. All right? अब सर BBA में creator, innovator, good news is, we'll come to that. Sir, ये आदमी कौन है? Sam Altman. ये कौन है? क्या किया इसने जीवन में? He is one of the founders of the open AI movement, okay? And आज ये जितना AI वे आ रहा है तुम्हारे जिंदगी में खतरा बढ़ाने के लिए, उसका पप्पा कौन है? ये आदमी है. ये आदमी क्या बोल रहा है पता है? क्या बोल रहा है? हाँ, क्या बोल रहा है? ओके, सबको समझ में आ गया? नहीं. Let us focus on one fact. पहले तो 2030 कितने हजार साल बाद आने वाला है? Go back. अरे हाँ, 2030 कितने हजार साल बाद आने वाला है? आ ही गया है 7 साल बाद. तुम लोग कितने साल के हो जाओगे 2030 में? 25 साल के. तुम लोग को सीनियर सिटीजन का रिजर्वेशन कोटा, FD में 1% एक्स्ट्रा, ये सब कुछ मिलेगा उस टाइम पे. तो ये आदमी बोल रहा है कि सिंगुलैरिटी आ जाएगा 2030 तक. व्हाट इज सिंगुलैरिटी? एनीबॉडी हैज हर्ड अबाउट इट? टेक ए गेस. ओके, हाउ मेनी ऑफ यू सी दिस शो एवरी ईयर? इट कम्स ऑन YouTube known as Google I/O. Good. 2 people out of the audience. Google I/O में क्या होता है ब्रो? गूगल अपना लेटेस्ट टेक रिवील करता है. इस बार का जो गूगल I/O देख पाया था 2024, क्या हुआ इस बार के गूगल के I/O में? ये फ्रीली अवेलेबल है. आफ्टर आई फिनिश माई सेशन, व्हेनेवर यू गेट अ चांस टू एक्सेस यूट्यूब, डेफिनेटली गो एंड चेक आउट गूगल I/O. वैसे तो 2 घंटे का सेमिनार है, बट पीपल, आज तुम लोग का माइक्रो डोजिंग वाला जनरेशन है ना, अटेंशन स्पैन के हिसाब से 10 मिनट का एक क्रंच है. हाँ सर, व्हाट वाज द मोस्ट यूनिक थिंग? जेमिनी. कितने लोगों ने जेमिनी सुना है? मेरा स्टार साइन जेमिनी है सर. ऐसा जेमिनी क्या है ब्रो? AI है पक्का? जेमिनी AI है? ओहो हो, तो तकलीफ है. जेमिनी एक LLM है. व्हाट इज एन LLM? लार्ज लैंग्वेज मॉडल. एक टेक से अभी बच्चा दिख रहा है मेरे को, यही है खतरे की घंटी. गुलाबी साड़ी, वड़ा पाव, चाय, ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन दुनिया को डोमिनेट करने वाली जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लेट मी नॉट एम्फसाइज टू मच ऑन दिस. One of the most important thing about the Gemini model that Google has unleashed upon us unsuspecting individuals is the multimodal AI. Multimodal AI मतलब वो ऐसा, चैट GPT में फिलहाल क्या चल रहा है? You have to type something, right? नेक्स्ट वर्जन में क्या? how many of you have work I mean at least been exposed to either DALL-E or Midjourney? कुछ लोगों ने देखा है. वेरी गुड. Anybody who has worked on a AI software which creates videos? Anybody? Which software have you worked on? Canva बहुत ही एवरेज टाइप का वीडियो बनाता ना. एक प्रॉपर हॉलीवुड फिल्म टाइप का वीडियो बनाना हो तो फाइनल कट प्रो तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है ना यार. Good. Adobe has certain products in that same niche, but what
Sam Altman or Google etc. are definitely betting on is by 2030 ऐसा AI आ जाएगा which will be by any standards far superior than a human being, far superior than a human being. अब AI का इशू क्या है? पहला इशू ये है कि उसके कोई भावनाएं नहीं है, तो उसका मूड स्विंग हो ही नहीं सकता है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है जो उसका हार्ट ब्रेक कर सकती है, उसको कोई प्रसंग नहीं है, उसको कहीं छुट्टी पे नहीं जाना है, उसका नेशनल हॉलिडे नहीं है, उसको रात को भी मेहनत करा दो, दिन में मेहनत, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पगार भी मत दो, उसको प्रमोशन भी मत दो, उसको समाज में इज्जत भी मत दो, वो काम करता रहेगा. ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर देयर टू हायर अ ह्यूमन बीइंग एंड गेट दैट पर्सन टू वर्क विल बी रिप्लेस्ड बाय सॉफ्टवेयर्स इन 2030. ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आदमी बोल रहा है. तो क्या फिर करना चाहिए? अब आया तुम लोगों का मीम, लाओ भाई. रियली थैंक यू. मैं यही चाहता था, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का लोचा क्या पता है, पॉजिटिव मोटिवेशन काम नहीं करता हमारे देश में. हमारे देश में दो ही चीज काम करता है, शॉक एंड ऑ. आर यू फीलिंग नाइस? गुड, दैट वॉज माई आउटपुट, दैट इज वॉट आई एग्जैक्टली वॉन्टेड. तो भाई मेरे प्यारे बच्चों, अगर चिल मारना चाहते हो मारो, कोई तकलीफ नहीं है. How many of your parents are millionaires? मैं इनकम टैक्स वाला नहीं हो रहे, हाँ आराम से बोल सकते हो. कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हाँ जी. तो ये अदरवाइज व्हाट, योर पेरेंट्स आर बिलियनर्स और व्हाट? ऐसा नहीं है. तो अगर पेरेंट्स मिलियनर्स नहीं हैं तो और टेंशन है, क्योंकि एक तरफ AI आके नौकरियां खा जाएगा. तुम में से कितने लोग नौकरी करना चाहते हो? कुछ लोग तो नौकरी करना चाहते हो, बट AI आ रहा है, क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? Now, when I started, कि should we be afraid of AI? Some of you said कि no. How many of you feel that AI will never be able to do as good as human beings? Why? I feel, which is nice, but why? Sorry? Human skills, excellent. What are human skills, beta? Human skills, good. But what are human skills? Very good. AI can't have emotions and feelings for people. So for example, I am feeling very senti about you. I am a human being, right? बहुत अच्छी लड़की है यार, बढ़िया लड़की है, कुछ कर लेगी. अब मेरे इन इमोशंस का कुछ पैसा मिलेगा क्या मेरे को? मैं बहुत इमोशनल हूँ सर, प्लीज गिव मी अ जॉब, ऐसा कुछ होगा? ऐसा नहीं हो पाएगा. फिर क्या करेंगे यार? ह्यूमन स्किल्स, इमोशंस और कुछ क्रिएटिविटी. Check it out. Check out the latest AI happening. The best of the best designers will not be able to churn it out in that manner. Sorry, beta. Power of thinking. Okay. Way of communication. Okay. Ethics. चलो एक चीज आया जो कि यूनिकली ह्यूमन है, एथिक्स. हाँ जी. तो फिर बहुत बढ़िया. अब आते हैं एक्चुअल थ्योरी पे, ठीक है. सो स्मृति मैम सेड दैट आई रन अ कंपनी एटसेट्रा एटसेट्रा. आई एम एक्चुअली एन इन्वेस्टर इन मेनी कंपनीज. वन ऑफ द प्राइमरी कंपनीज दैट टेक्स अ लॉट ऑफ माय टाइम इज समथिंग टू डू विथ फिनटेक. वी मैरी AI विथ फिनटेक. ज़्यादा इंग्लिश नहीं करेंगे हम लोग. चार्टर्ड अकाउंटेंट सुनो, चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे लोग होते हैं ये लोग? वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन द कंट्री, वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड प्रोफेशनल्स व्हेन इट कम्स टू द फाइनेंस डोमेन, है ना. हाउ मेनी ऑफ यू पर्सनली नो एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट? गुड. गुजरात वैसे भी ह्यूज वॉल्यूम्स में यहाँ से CAs निकलते हैं, राइट. हमारी कंपनी एक ऐसा काम कर रही है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, गोल्ड स्टैंडर्ड, राइट. उससे हैवी प्रोफेशनल होता है क्या फाइनेंस इंडस्ट्री में? नहीं होता है, राइट. एक बैंक में जब कोई भी लोन का एप्लीकेशन जाता है तो देयर आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु डिसाइड कि कितने अमाउंट का लोन मिलेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, लोन इसको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ. एक ह्यूमन चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ऐसे केस को हैंडल करने के लिए इजीली 4 से 6 दिन लगाता है. बैलेंस शीट्स होते हैं, बैंक स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. मैं आप लोगों को कैलिफोर्निया लेके नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको हमारे ही देश हिंदुस्तान में मेरी ही कंपनी की बात करना चाहता हूँ. हमने जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट किया है वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जो चीज़ 8 दिन में करता है वो मेरा AI 8 मिनट में करता है.
तो अब वो एथिक्स हो या इमोशंस हो या क्रिएटिविटी हो, हम क्या कर रहे हैं? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की नौकरी को खतरे में डाल रहे हैं। बीबीए ग्रेजुएट्स के कंपैरिजन में चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़्यादा वैल्यूएबल होना चाहिए कि बीबीए ग्रेजुएट्स का बहुत वैल्यू है मार्केट में? ठीक है, ये एक सिंपल सा मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं गाइस। द आइडिया अगेन इज नॉट टू डीमोटिवेट यू, द आइडिया डेफिनेटली इज टू स्केयर यू अ लिटिल बिट। जितने लोग ड्रीम लैंड में बैठे हो अभी भी कि हाँ, आई एम दिस यूनिक स्नोफ्लेक, आई हैव अ पर्पस इन लाइफ, आई विल स्प्रेड लव इन द वर्ल्ड, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, चो स्वीट, चो क्यूट, whatever, but स्माइली, थम्स अप, थम्स डाउन, हार्ट, धंधुम, जो भी कर रहा है मार्केट में, राइट? रियल वर्ल्ड में भैया कट थ्रोट कंपटीशन में एफिशिएंसी, प्रॉफिटेबिलिटी पे ही लाइफ, करियर्स और ग्रोथ डिफाइन होता है। ओके, तो क्या करें फिर? पढ़ाई लिखाई छोड़ो, वैसे ही मौत आने वाली है तो एंजॉय कर लो जिंदगी की। क्या करना है? मूव ऑन, रिलैक्स, गुड न्यूज इज कमिंग। Good news, particularly because we are Indians. Let us move on to the next slide. ये आदमी कौन है? क्या करता है ये आदमी? रोड बनाता है, बेचारा कॉन्ट्रैक्टर टाइप का आदमी है ना? धूल मिट्टी ईंट सीमेंट यही सब करता है। कौन है ये आदमी? रोड मैन ऑफ इंडिया, अमेजिंग। मिनिस्टर ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्ट बोला जाता है उसको। शर्म करो बीबीए ग्रेजुएट्स, रोड बनाता है। अभी एआई से सड़कों तक क्यों ले आ रहे हो यार? क्या कहना चाहते हो? तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि नितिन गडकरी जी के ऑफिस में ना एक ये पोस्टर लगा हुआ है, जॉन एफ कैनेडी। जॉन एफ कैनेडी कौन है या था या कौन क्या है? वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट्स ऑफ द यूएस, अनफॉर्चुनेटली मोर पॉपुलर बिकॉज ही वाज बैडली assassinated. However, he had said the statement that American roads are good not because America is rich. America is rich because American roads are good. Are India's roads good? Not at all. तुम कितने entitled हो तुम लोग को पता नहीं है रे। When we were your age, there were no roads only. Forget good or bad. And let me assure you, as a person who has traveled fairly across the world, our roads are as good as it gets wherever. You go to the US, you go to the Europe, you go to Southeast Asia, you go to Middle East, some of our roads are truly world class. अब तेरे घर की गली में वाटर लॉगिंग हो रहा है तो भैया म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का लोचा है, इस आदमी को ब्लेम मत करो, ठीक है? गो टू चेक आउट द हाईवेज, चेक आउट द एक्सप्रेसवेज, दे आर वर्ल्ड क्लास। मैं ये रोड पे क्यों ले आ रहा हूं तुम लोगों को सडनली? इधर एआई की बातें चल रही थी, रोड पे क्यों ले आ रहा हूं? बिकॉज वेदर यू अप्रिशिएट इट और नॉट, साइलेंटली तुम लोगों के लिए कुछ मैसिव हाईवेज भारत सरकार बना रही है। उस हाईवे का रोड, एक्चुअल रोड से कोई लेना देना नहीं है, ये इंफॉर्मेशन हाईवेज हैं। These are massive information highways that are getting built not for my generation to leverage, for your generation to leverage, for your generation to build your careers. Can we move on? ये क्या है? ऐसा कोई है यहां पे जिसका कोई आधार नहीं है? कोई है? बांग्लादेश से कोई आ गया, ऐसा कोई तो नहीं? गुड, चलो हाँ आगे बढ़ो। ये क्या है? ऐसा कोई है जिसने आज तक यूपीआई से पैसा नहीं दिया किसी को या पैसा लिया नहीं हो किसी से? क्या कर रहे हो? अरे बेचा, क्या यू आर स्टिल इन द कैश इकोनॉमी? भैया आज ही सेशन के बाद गूगल पे मुझे ₹1 भेज, ठीक? नेक्स्ट, वी ऑल एंजॉयड 2020 फुल ऑन, मजा आया हमें जी। ये फिर ONDC, how many of you heard about ONDC? Majority of you have not heard about it. Very good. इसलिए मैं बोला था साइलेंटली कुछ कुछ हरकतें हो रही हैं हमारे देश में। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा जो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है ये मेड इन इंडिया नहीं है? 100% मेड इन इंडिया। वी वर टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम, वेयर इज इट मेड? इन द US, ChatGPT, US, Threads, YouTube, Google. But all of these are 100% made in India. Let us not talk about everything, let us just talk about Arogya Setu.
आरोग्य सेतु दुनिया का एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसने 1.3 बिलियन कोविड वैक्सीनेशंस को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार ट्रैक और मॉनिटर किया है. कैन यू इमेजिन द ह्यूमंगस साइज ऑफ दैट एक्सरसाइज? 1.3 बिलियन doses, and silently, without any chest beating, it is happening in our country. This entire thing, these are just 5 logos. The government of India is building what is known as digital public infrastructure. जैसे highways public infrastructure होता है हमारे लिए यूज करने के लिए, digital internet पे इस type के huge massive infrastructural developments are happening. For which generation to leverage? For you guys to leverage. इस पूरे स्टैक को इंडिया स्टैक बोला जाता है. So while you people will be studying the basics of marketing and HR and finance and organizational behavior and supply chain and operations and entrepreneurship and supply whatever blah 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 blah, do keep your eyes and ears open for the India stack. Sir, ठीक है, यहीं पे अहमदाबाद में ही इतनी कंपनियां हैं जो अमेजिंग काम कर रही हैं इन सारे चीज़ों के ऊपर. Yesterday, I believe there was some gentleman who runs a food aggregator app had come to talk to you, right? कि तुम लोग ऑडियंस ही अलग हो, ऐसा है? No? Okay, audience is different. So there was some gentleman who came here. ONDC का full form क्या है, guys? पढ़ लिया, very good. But ये है क्या? Open Network for Digital Commerce है क्या? Again, when you look at the e-commerce market, Amazon Indian brand है क्या? फ्लिपकार्ट इंडियन ब्रांड है क्या? है, पर हमने बेच दिया उसको वॉलमार्ट वालों को. ये जो अभी आ गया तुम्हारा जो भी है स्विगी, इंस्टामार्ट या जोमैटो, आर दे इंडियन ब्रांड्स? स्विगी. तो while some of the Indian brands are also giving it a good fight, the biggest players are actually foreign players. Is that good for us or bad for us? We should not be happy using all sorts of foreign items only ना. तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन की दादागिरी को हटाने के लिए ONDC इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. So right from the cab aggregators, is Uber an Indian company? To your hyper local commerce, to the छोटा दुकान वाला, whoever wants to go online. आज अमेजोन को कमीशन देना पड़ता है, फ्लिपकार्ट को पैसा देना पड़ता है, उबर को कमीशन देना पड़ता है. गवर्नमेंट इज मेकिंग इट ऑल फ्री फॉर इंडियन बिजनेसेस टू लेवरेज. ओके, यूपीआई फॉर एग्जांपल, दुनिया में 150 साल से 2 अमेरिकन ब्रांड्स डोमिनेट कर रहे थे पेमेंट स्पेस को, वीजा एंड मास्टर कार्ड. यूपीआई ने आके एक साल में उनसे 17 गुना ज्यादा ट्रांजैक्शंस कर लिए. That is the power of India, and that is the power of the tech stack that is being developed in India, and that is what, as students of business, you must keep your eyes and ears open. यहाँ पे मिलेंगे opportunities, यहाँ पे मौका मिलेगा, यहाँ पे अपने ideas को deploy करने का opportunity मिलेगा, और यहाँ पे करोड़ों करोड़ों कमाने का opportunity मिलेगा. Okay, move on please. तो भैया 3 साल का हम इंतजार नहीं करेंगे, 5 साल का तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे. हम सब एक चीज एम्ब्रेस करेंगे, दैट द फ्यूचर इज, डू यू रियली बिलीव इट? द फ्यूचर इज. सो व्हाट डू आई डू अबाउट इट? हाउ डू आई सीज द फ्यूचर? ब्रॉडली 5 things. First things, you are taken care of subject matter expertise. You have great faculty members, you've got a great curriculum. It is definitely going to ensure that your understanding of business and management will be there. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, बंक मारो, सेंटी हो जाओ, जो भी करना चाहते हो, डो नॉट गो इजी ऑन योर एकेडमिक्स. स्टे फोकस्ड वेदर यू एंजॉय इट और नॉट. जैसे मैंने बताया था, 10 लाख लोग तुम्हारे साथ निकलेंगे भैया, उन लोगों का नॉलेज और आपका नॉलेज एटलीस्ट एट पार होना चाहिए. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जस्ट बिकॉज you did not learn coding in school, or maybe you, how many of you know how to code? A very few. ठीक है, अब fortunately for all of us, code free technologies has arrived. कोडिंग जानने की जरूरत ही नहीं है, ये कितने लोगों को पता है? तो BBA के साथ साथ keep your eyes and ears open. वो जो 15 घंटे हम रिसर्च में लगा रहे हैं, उन रिसर्च को थोड़ा इस दिशा में भी अलाइन किया जाए. You cannot run from this, guys. Either you become a victim or you become somebody who takes advantage of this. I would bet
my last bottom dollar, that if you guys ride the tech skilling wave parallel to your academic credentials, you will be far better poised than just an average BBA graduate out there. Move on. ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है यार. अभी क्योंकि हाइपर कम्युनिकेशन के ज़माने में आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप का फीडबैक मिलता है, राइट? एक चीज़ एज ए यंगस्टर विच बिकम्स वेरी वेरी टफ टू अप्रिशिएट इज क्रिटिकल फीडबैक अबाउट योर सेल्फ. इज एनीबडी परफेक्ट? But to be able to take feedback positively and focus on your growth is a very, very important skill. तो अपने आप को कई बार critically evaluate करने का skill आप लोगों को सीखना पड़ेगा, so that when people like me end up critically evaluating you, you don't feel terrible. Because दुनिया बहुत बेरहम है. Let me assure you that it is cut throat. प्यार मोहब्बत सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स में होते हैं. आजकल वहाँ पे वो भी नहीं है. The business world has zero scope for any kind of goof ups. Okay? The next thing, human skills. Like we were discussing, AI cannot be human. But what exactly are human skills? If, for example, how many of you actually have more than 5 friends? Good. How many of you have more than 20 friends? नंबर गिरता जा रहा है. How many you have more than 50 friends? Good. 50 friends. इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स नहीं है, फ्रेंड्स. रात को 2 बजे अगर गलती से एक्सीडेंट हो गया, फोन करो, जो दौड़ते हुए आ जाएगा लेने के लिए, वो होता है फ्रेंड. How many? 50? 50 लोग क्या करेंगे तेरे को उठाने के लिए? 4 ही चाहिए ना. But good. But friends are often people who are very similar to us, right? हम दोस्ती किनसे करते हैं? Birds of the same feather flock together, right? However, now that you are in college, आप ही के university में there is this law program, there is this design program, there is this computer science program. To ensure that while you are obviously going to be making friends in the BBA fraternity, you must make it a strong point to have different backgrounds of friends. Ideally, global friends, somebody from US, somebody from Africa, somebody from Southeast Asia, actual human relationships. That is point number 1. Point number 2, हम जैसे काका लोगों को भी अपने नेटवर्क में बना के रखो, क्योंकि बाहर जैसे निकलोगे किसके साथ compete करोगे? हम लोग बैठे हैं भैया, हम बाहर बैठे ही हैं. आजा आजा मुन्ना, तेरे को काटता हूँ. Right? So, when your university is taking the effort to bring in people of variety of industries with variety of experiences, ensure that you start making a personal connect with them also. Why? मेरे साथ दोस्ती करके क्या फायदा होगा तुम लोगों को? एक्सपीरियंस से ज़्यादा मेरे धंधे में अगर मेरे को किसी यंग टैलेंट का रिक्वायरमेंट है, I would love to hire from you guys, right? So it will be a win-win kind of. हाँ, of course, experience कि हाँ अंकल आप कैसे बूढ़े हो गए, बेटा बहुत मेहनत नहीं लगता है, टाइम जाता रहता है, बूढ़े होते रहते हैं, ठीक है. बट अंकल बिजनेस में क्या चल रहा है, राइट? तो हैविंग अ कनेक्ट विद समबडी सीनियर टू यू विल मैटर अ लॉट, एंड पर्टिकुलरली लीडर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री. कॉन्शियस एफर्ट लगता है इसमें. टुडे हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट देयर ऑन लिंक्डइन? आ जाओ रे. इंस्टाग्राम में हम जैसे अंकल लोग मिल भी जाते हैं तो बहुत गंदे रील्स डालते हैं, लेकिन लिंक्डइन पे हम जैसे अंकल लोग जो लिखते हैं वो असली दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में होता है. बट इवन टुडे इन योर लिंक्डइन प्रोफाइल व्हाट विल बी रिटन? स्टूडेंट एट GLS यूनिवर्सिटी. मेरे को आया लिंक्डइन पे स्टूडेंट एट GLS यूनिवर्सिटी का एक रिक्वेस्ट. मेरे को क्या फर्क पड़ेगा यार? कोई फर्क पड़ेगा? सो इट बिकम्स इवन मोर चैलेंजिंग फॉर यू टू गेट दैट काइंड ऑफ अ okay, yeah, I want to connect with you unless there is something extra. You cannot simply be just a student. Okay? The last thing, and this is the most important thing, money. How many of you have earned some money so far in your life? Pocket money does not count. Good. क्या किया है? ड्रीम 11 वाले हाथ नीचे करो तेजी से. ओके. क्रिप्टो वाले भी हाथ नीचे करो, स्टॉक मार्केट वाले भी हाथ नीचे कर दो. अब कुछ लोगों ने जो हाथ खड़ा किया है, गुड सर. आपने कैसे पैसे बनाए? इवेंट मैनेजमेंट. वेरी गुड सर. क्लोथिंग ब्रांड. एक्सेलेंट सर.
Interning, very nice. Ma'am? Sorry, come again? RE work and embroidery. Excellent, yeah, very nice. Exotic answer. Sir? Sorry? Food business. Excellent. Yes, yes, yes. Handmade gifts and drawings. Working for a production house. Huh? Content creation. Excellent. So I see that at least a fair degree of people have had some amount of प्रोफेशनल एक्सपोजर जिसके वजह से पैसा मिला है. इंटर्नशिप में कितना पैसा मिला? क्या किया? नहीं, वो 10,000 का क्या किया? नहीं, ओके, गुड. तेरा वो हैंड वर्क, हैंड पेंटिंग और व्हाटएवर, उसमें कितना कमाया? 2,000. क्या किया? नहीं, क्या किया? खरीदा ना, आइटम उड़ाया ना. वेरी गुड. वो तो लड़का एकदम वो कौन सा श्रवण कुमार है, मम्मी पापा के चरणों में अर्पण कर दिया. गुड जॉब ब्रो. ऑलराइट, बाकी कौन था? हाँ भाई, सुपर. क्या किया उस पैसे का? बेसिक नीड्स, रोटी कपड़ा मकान एंड ऑल. हाँ, वेरी वेरी नाइस. अरे पैसा उड़ा दिया बोलने में शर्मा क्यों रहे हो? गुड, उड़ा रहे हो तो ही तो हमारा जीडीपी बढ़ रहा है ना. सो माय डियर बॉयज एंड गर्ल्स, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, हमारे पास पहले तो इंटरनेट ही नहीं था. जैसे ड्रीम 11 का हाथ नीचे करने के लिए बोला, काफी लोगों ने हाथ नीचे कर लिया ना. बट ड्रीम 11 होता तो शायद मैं भी उसमें करता कुछ ना कुछ. अपेरेंटली इट इज अ गेम ऑफ स्किल. ओके, बट हम मैं कुछ करता. सिमिलरली स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव एटलीस्ट गॉट सम एक्सपोजर टू द स्टॉक मार्केट्स? गुड. हमारे टाइम पे भैया ये डीमैट वीमैट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था. हार्ड कॉपी, वो स्कैम 1992 देखे हो, वो हमारे टाइम पे ही हुआ था. हार्ड कॉपी में स्कैम होता था उस टाइम पे, राइट? बट टुडे हाउ मच डज इट टेक टू ओपन एन अकाउंट इन जीरो था? जीरो. होगा ना कोई इन्फ्लुएंसर, मेरा कोड डालो और डाउनलोड करो वाला, तो जीरो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द आर्ट ऑफ नॉट जस्ट मेकिंग मनी, investing and growing money. The sooner you learn that, the better poised you will be. जैसे हम like I was telling you, हम बहुत ही गरीब कंट्री में पैदा हुए थे यार. हमारे लिए ये चीज़ों को देख के एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाता था. कोका कोला खाना ही पीना ही है, डोमिनोज का चीज़ बर्स्ट खाना ही है. बर्स्ट कहाँ से हो रहा देख रहे हो? बट यू गाइज फॉर्चुनेटली वर बॉर्न इन अ कंट्री विच इज, आई मीन, ऐसा कोई भी चीज़ एक अमेरिकन यंगस्टर तुम्हारे एज का कंज्यूम करता है जो तुम लोग नहीं कर पा रहे हो. एक चीज लेकिन कंज्यूम ही करते जाना डज नॉट मेक एनी काइंड ऑफ सेंस. सो ऑल ऑफ यू मस्ट definitely find some or the other way of making some money. Not the quantum of money which matters, the way you make money, your own money, and then accordingly invest and grow it. Because एक और चीज क्लियरली दिख रहा है, थोड़ा सा डिप्रेसिंग लगेगा भैया, there is no magic wand. There cannot be so many jobs available in a country like this. So I bet my bottom dollar at least 70% of this audience will actually be self-employed. You will do your own thing, you will work as either individuals or start up your businesses. वैसे भी गुजरात की भूमि में धंधा पानी तो है ही, right? And तुम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? धंधा ही पढ़ रहे हो तुम लोग, बिजनेस पढ़ रहे हो, राइट? सो पैसा मैनेज करने का स्किल भी आप लोगों को सीखना पड़ेगा. ये जो कॉम्बिनेशन है इन 5 स्किल्स का, बेसिक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज, टेक्नोलॉजी लिटरेसी, critical thinking, being able to take hard knocks and still stand up and smile, connecting with humans, the widest range of variety of humans that you personally connect with, and of course the art of making money. इन 5 skills पे please focus करिए. दुनिया की कोई ताकत आपको रॉकेट की तरह उड़ने से नहीं रोक सकती है. Okay? So in the last slide I will read the first sentence, you will all read the last sentence loudly. Don't just go through college. Sad. Don't just go through college. Thank you for tolerating me. It was a pleasure. God bless you all. Please have a seat. Lastly, I would like to thank sir for spending time for our students. Thank you so much, sir, for your valuable insight.
That was a power-packed session full of knowledge, everyone. Clap one more time. Thank you so much, sir, for #realization. I would like to thank GLS University for facilitating the events of FOBA. Without your support, this would not have been possible. I would also like to thank Dr. Shefali Dani, Dean Ma'am, for her support, continuous support. She reminds me of one quote of my favorite one by Simon Sinek. Leadership is not just about being in charge, but also taking care of those in your charge. So thank you so much, ma'am, for always supporting us. I would also like to thank our faculty members throughout the orientation for their support. Last but not the least, the admin staff. They are running since so many days for the admission process. So thank you so much, the admin and the Pune staff. And my dear volunteer students, thank you so much for running like a marathon since so many days.